Good morning, class. Today the topic is preposition. Okay, we are moving to the topic. Preposition is the fifth part of speech from the English grammar, and that is preposition. So here, here we will learn that what the word preposition really means. What is the meaning of the preposition word? Okay, so preposition. So the preposition word is formed from the two words, and that is first is prepo, and second is position. So it is combined of the two words, that is preposition. Prepo plus position. Pre means that is fixed. Pre is that is fixed. And position means related to the what is the position of that thing. Okay. So fixed position is known as preposition. Now how will you define the word preposition? Preposition is a word that means the position is fixed, whose position is fixed. This is the first definition. The second definition of the word preposition is that preposition relates part of speech. Preposition relates part of speech. That is the second important point of the from the preposition. And the third important point from the word preposition is that preposition is generally followed by an object. Is generally followed by an object. Followed by an object. प्रीपोजिशन को फॉलो किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा. प्रीपोजिशन को फॉलो किया जाता है बाय हुम, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा. ओके, सो ये प्रीपोजिशन होती है. नो प्रॉब्लम. मूव टू द नेक्स्ट पेज. दैट हाउ वी विल डिफाइन these words. How will you define these words? Like first and foremost thing is, let's suppose some sentence is like that. Sita was in the room. Was in the room. So in is the preposition here. In is the preposition here. Sita is a noun and room is a noun. So who is interconnecting here? Sita to noun. That is by the help of with the help of the preposition. With the help of preposition. Sita was in the room. So Sita is a noun, room is a noun. So both is connected by in. So now the second sentence is, there is a cow in the field. Second sentence is, there is a cow in the field. So there is a cow. Cow is the noun. Field is also a noun. Field is also a noun. Field is also a noun. He is fond of tea. He is fond of what? He is fond of tea. So fond is an adjective and tea is a noun. There is a cow in the field. Cow is a noun while field is also a noun. यहाँ पे क्या आएगा? Preposition in. The cat jumped off the chair. Here off would be like that. Jumped is a verb and here it is noun. So establishing the relationship between the part of the speech is known as the preposition. Establishing a relation between the part of speech is known as preposition. Okay. So he is fond of the tea is an adjective and he jumped off the tea verb. So जो पार्ट ऑफ स्पीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवा दे तब वो प्रीपोजिशन. काउ क्या है? एक नाउन है. फील्ड क्या है? एक नाउन. काउ सब्जेक्ट की तरह है और फील्ड ऑब्जेक्ट की तरह है. बट
दोनों है तो नाउन। तो इसके बीच में अगर देखो प्रीपोजिशन यहाँ से हटाते हैं, प्रीपोजिशन सपोज करो कि हटा ले, तब यही रिलेशन कैसे आएगा कि देयर इज ए काउ द फील्ड। कितना अजीब बन गया, देयर इज ए काउ इन द फील्ड, उसकी जगह देयर इज ए काउ द फील्ड, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, फॉन्ड के बाद में क्या आया, ओ। फॉन्ड के बाद में क्या आया, ओ। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, कैट किससे कूद गई, चेयर से कूद गई। कैट किससे कूदी, चेयर से कूद गई। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, पहले सेंटेंस में रिलेशन बता रहा है दो थिंग्स के बीच में, दैट काउ एंड फील्ड। दूसरे के बीच में रिलेशन बता रहा है एट्रीब्यूट और एक्सप्रेस्ड बाय द एडजेक्टिव एंड टी। एडजेक्टिव कौन है दूसरे सेंटेंस में, फोन, एंड द second word is T. Third sentence में the word shows between the relation between the action expressed by the verb jumped and the chair. तो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ रहा है तो प्रीपोजिशन। अगर सब पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ के कोई सेंस प्रोवाइड कर रहा है तो भी वो भी प्रीपोजिशन। और थर्ड इज दैट कि अगर वो ये रिलेशन है, वो एक्सप्रेस किए जा रहे हैं जंप और चेयर से, अगर ऐसा है तो वो क्या है, प्रीपोजिशन। ओके, अगर सेंस नहीं निकल रहा सेंटेंस का तो वो प्रीपोजिशन हटाने के कारण नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन लगाने के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, तो अब देखते हैं अगले सेंटेंस के अंदर। अब यहां देखिए, कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है ताकि ये बता सके कि उस पर्सन या चीज की किस लिए आया हो, रिगार्डिंग टू समथिंग एल्स। कि द वर्ड प्रीपोजिशन मीन दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर। तो ये नोटिस किया जा सकता है कि प्रीपोजिशन ज्वाइन करता है एक नाउन को दूसरे नाउन से। प्रीपोजिशन किसको ज्वाइन करता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से। दूसरी चीज, प्रीपोजिशन ज्वाइन करता है एक नाउन को दूसरे एडजेक्टिव से, एक नाउन को दूसरे एडजेक्टिव से। और तीसरी, एक नाउन को वर्ब से, एक नाउन को किससे, एक वर्ब से ज्वाइन करता है। तो अगर ऐसा करे देन इट्स प्रीपोजिशन। तो वो क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ज्वाइन करता है नाउन को एक दूसरे नाउन से, नाउन को एक एडजेक्टिव से, और नाउन को एक वर्ब से। किस किस से, नाउन को नाउन से, नाउन को एक एडजेक्टिव से, जैसे सेकंड सेंटेंस में कर रहा था। थर्ड, जब किस नाउन था द और ऑफ वर्ब से ज्वाइन कर रहा था। तो नाउन और प्रोनाउन जो कि प्रीपोजिशन के is called its object. It is in the accusative case and is said to be the governed by the preposition. तो पहले सेंटेंस में noun field is in the accusative case governed by the preposition in. ठीक है, तो पहले केस में एक्यूजेटिव केस में यूज हुआ है और प्रीपोजिशन क्या आ रही है, इन। कैसे, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, किसके साथ आई, फील्ड के साथ। फील्ड क्या है, एक नाउन। यही तो कह रहा है वो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में कि प्रीपोजिशन या तो नाउन के लिए या फिर नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए उससे पहले आती है, उसका रिश्ता बताने के लिए अदर पार्ट ऑफ स्पीच, या वो किस लिए आई है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। कि एक प्रीपोजिशन दो या मोर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे रोड रन्स। अब यहाँ पे ये वर्ब है, रोड रन्स
over the road runs over hill and plain। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन में हो टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स है। जैसे रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन, हिल और प्लेन तक रोड जाती। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स इट इज एज। तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है कई बार कि हेयर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। आस्क्ड क्या वर्ब है और फॉर यहाँ पे आया। दैट इज द बॉय whom I was speaking of, यहाँ क्या है ऑफ। व्हाट आर यू लुकिंग एट, दैट इज what are you looking at, what are you thinking of, what are you thinking of, which of the chairs did you sit on। अब देखो चेयर्स के साथ में प्रीपोजिशन दो तरह की आती है, एक ऑन और एक इन। इन तब आएगी जब वो कवर्ड चेयर हो, ऑन तब आएगी जब वो खाली चेयर हो जिसपे बैठा जा सकता। कि एक ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट इन सेंटेंस फर्स्ट द प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए कि हियर इज द वॉच, तो देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है दैट यू आर फॉर, दैट इज द whom, दैट इज द बॉय whom I was speaking of, what are you looking at, what are you thinking of। तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, विच ऑफ द चेयर्स डिड यू सिट ऑन। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए देन द प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड एट द लास्ट। कहाँ पे आएगी, लास्ट में आएगी। तो preposition is often placed at the end when the object is an interrogative pronoun or a relative pronoun। जैसे what is the, जैसे आपने पिछला सेंटेंस पढ़ा यहाँ पे कि क्या था कि प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या है कि what are you looking at, तो इंटेरोगेटिव है। what are you thinking of, इंटेरोगेटिव है। which of these chairs did you sit on, इनमें से किस पे बैठोगे, तो इंटेरोगेटिव है। तो whenever there would be interrogative then there would be always क्या होगा यूज, कि वहां पे क्या यूज होगा, प्रीपोजिशन लास्ट में आएगी। ओके, कि एक दिस आई इंसिस्ट ऑन, इस पे मैं इंसिस्ट करना चाहूंगा। कई बार ऑब्जेक्ट पहले रखा जाएगा प्रीपोजिशन से, क्यों, इम्फेसिस के लिए, इम्फेसिस प्रोवाइड मतलब सेंटेंस में जोर डालने के लिए। दिस आई इंसिस्ट ऑन, इस बात पे मैं तुम्हारा ध्यान दिला बताता हूँ। तो इंसिस्ट क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले आया ऑन, बाद में आया ऑन। ठीक है, दिस आई इंसिस्ट ऑन, ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर, उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ओके, यहाँ पे ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड की जगह क्या किया, पहले वर्ल्ड लिया है, मतलब नाउन कहाँ लिया है, पहले लिया है। ही इज नोन ऑल वर्ल्ड ओवर, पहले लिया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑल दैट द सेंटेंस इज स्टिल राइट। जैसे प्रीपोजिशन है फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, वो ऑफन ओमिटेड रहती है बिफोर नाउन्स और प्लेस ऑफ टाइम। जैसे प्रीपोजिशन है
फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ये हमेशा हम यूज नहीं करेंगे। कब? जब नाउन रहेंगे प्लेस और टाइम का, जब नाउन रहेगा प्लेस और टाइम का। जैसे वी डिड इट लास्ट वीक, तो यहाँ पे वो सेंटेंस देगा आपको, वी डिड इट इन लास्ट वीक, तो ये सेंटेंस रहेगा, बट इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आई कैन नॉट वॉक फॉर ए यार्ड, आई कैन नॉट वॉक फॉर ए यार्ड, आई कैन नॉट वॉक फॉर ए यार्ड, वेट फॉर ए मिनट, वेट फॉर ए मिनट। तो वेट फॉर ए मिनट क्या है? गलत है, बिकॉज इनकी जगह फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ये प्रीपोजिशन तब यूज नहीं हो सकती जब क्या रहे, नाउन्स और प्लेस और टाइम ये मिस रहे। ओके, तब ये यूज नहीं हो सकती, तब ये यूज नहीं हो सकती। वी डिड इट फॉर लास्ट वीक, हमने ये लास्ट वीक किया था। आई कैन नॉट वॉक फॉर ए यार्ड, अब ये वो यार्ड क्या है? डिस्टेंस है सर, इसलिए प्लेस और टाइम, अब ये डिस्टेंस है, ये वीक टाइम है, लास्ट वीक क्या है? टाइम। वेट ए मिनट, टाइम। जब भी टाइम की वी डिस्टेंस की, ऐसे आई कैन नॉट वॉक ए यार्ड, अब यहाँ पे फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन यूज नहीं कर सकता है, वी डिड इट इन लास्ट वीक। ओके, तो ध्यान रखना। प्रीपोजिशन के तरीके, कितने तरीके की होती है प्रीपोजिशन, ये पढ़ते हैं अपन कि तरीके कितने हैं प्रीपोजिशन के, क्या तरीके। तो तरीके कितने हैं प्रीपोजिशन के, कि प्रीपोजिशन अलग अलग तरीके में आ सकती है। तो पहली प्रीपोजिशन होती है दोस्तों सिंपल प्रीपोजिशन। कौन सी? सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रेपो। तो दैट इज कि एट, बाय, फॉर, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ये क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। इन, ऑफ, ऑफ, आउट, फ्रॉम, इन, टू, अप, विथ, ये क्या है? सारी सिंपल प्रीपोजिशन है दोस्तों। सिंपल क्यों बना जाता है इनको? क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा वर्ड नहीं आया है। ओके, कोई भी दूसरा वर्ड नहीं आया है इसमें, इसलिए बोला जाता है। इनको क्या बोला जाएगा? सिंपल प्रीपोजिशन। अदरवाइज these kind of the preposition are known as compound of the phrasal preposition. अब देखो एट में कोई दूसरा वर्ड है? नो, देयर इज नथिंग इन द नेम ऑफ द वर्ड, देयर इज नथिंग इन द नेम ऑफ द वर्ड बाय, देयर इज नथिंग इन द नेम ऑफ द वर्ड फॉर, फ्रॉम, ये सारे सिंगल वर्ड है। इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, टू, अप, विथ। सो यू कैन रिपीट विथ मी, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि एट और बाय, फॉर और फ्रॉम, इन और ऑन, इन और आउट, ओ फॉर ये वाला ओ, अभी मतलब भी समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। थ्रू और टिल, विथ और अप टू, तो याद रहेंगे। एक एट, दूसरा बाय, तीसरा फॉर, चौथा फ्रॉम,
पांचवा इन और चौथा छठवा ऑफ और फिर दो डबल ऑन, आउट, थ्रो, टिल, टू, अप, विथ। तो इतने होते हैं वर्ड्स। ओके, तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होती है? वो जनरली फॉर्म बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन। जब आप प्रीपोजिशन को फिक्स कर दोगे तो मतलब एक और प्रीपोजिशन लगाओगे। अब यहाँ पे ए का मतलब होता है नो और बी का मतलब होता है बाय। कि ए आया मतलब नो और बी आया वो बाय वर्ड से बना है पूरा देश। ओके, जैसे बिलोंग तो मतलब बाय द लॉन्ग, बिहाइंड बाय हाइंड, बाय द लो मतलब उससे नीचे। ओके, तो ध्यान रखना ए वर्ड बना है नो से। जैसे अबोव मतलब नॉट अबोव दैट, अक्रॉस मतलब नॉट क्रॉसिंग दैट। ओके, टू ए नाउन और किसके? एक नाउन के आगे लगाया जाता है। अबाउट, अब ए मतलब नो, बाय, आउट, ही इज अबाउट टू लीव मतलब वो निकल चुका है अभी तक वहां से। तो अबाउट से बनी है। अबव, अक्रॉस, अलोंग, एमिड्स, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within or without. All are prepositions. All are prepositions. सारी की सारी क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। विद इन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ। अब अंडर और नीथ, there are two words in it, so it's known as compound preposition. ठीक है, विद इन with preposition in preposition, with or out, within, without, underneath, beyond, beside, inside, outside, between, below, behind, about, above, across, along, amidst, among us, around, before. ये सारी क्या है? प्रीपोजिशन। among, about, above, across, along, amidst, these are known as prepositions. अब चलो दोस्तों देखते हैं आगे। ओके, कि तीसरी प्रीपोजिशन होती है जिनको बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशंस वो ग्रुप होता है प्रीपोजिशन का जो फोर्स होता है जिसमें सिंगल प्रीपोजिशन का। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड वर्ड प्लस आईएनजी। ओके, तो ऐसे होता है अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ। अब देखो अकॉर्डिंग क्या लेता है? टू, बट जैसे ही वर्ड चेंज हुआ तो क्या आया? अकॉर्डेंस। तो क्या प्रीपोजिशन भी क्या हो गई? चेंज हो गई दोस्तों। इन अकॉर्डिंग टू, बट इन अकॉर्डेंस क्या लिया प्रीपोजिशन? विथ। इन प्लेस ऑफ, अब एक प्रीपोजिशन है इन रेफरेंस टू एंड द सेकंड प्रीपोजिशन इज विथ रेफरेंस टू। विथ इज आल्सो टेकन बाय द प्रीपोजिशन इन। in at the place of the in, with is also referred. In addition to, इन एडिशन टू भी कहाँ पे आता है? इन और एडिशन दोनों टू। हालांकि ये अलग बात है कि केवल एडिशन वर्ड हो देन प्रीपोजिशन में भी डिफर्ड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ द वर्ड। जैसे एग्रीबली टू। अब देखो फ्रेंड्स, when there would be only a single word agree, it will take the preposition agree with, that I am agree with somebody means a person is present there. But agreeably to, here person is not present, here conditions or the circumstances are there, like it is agreeably to what I have accepted that your terms and conditions. Okay, so whenever there is a person there would be with, agree with.
but whenever there would be the condition, it would be agreeably to. So the first word is according to, second word is in accordance with, third word is in place of, fourth is agreeably to, fifth is in addition to, and the sixth one is in reference to. So these are known as fixed preposition. Many times in the banking exam, these have been appeared either in the prelims or the mains. They are directly asked, means they would put a certain kind of error, like in reference to की जगह वो in reference with दे देगा, या in reference of दे देगा, in reference of something. So it's a wrong preposition. In reference to, in reference would take the preposition to. Along with, along will take the word with. You have already know that along with and together with, yeah, as well. These preposition takes generally with. On behalf of, you have heard on behalf of, but there is also a preposition that is known as in behalf of, is also used. In behalf of is also a right word, that in behalf of his country he gave his life. In regard to, in regard to. Away from, in case of, in spite of, because of, by dint of, by means of, in compliance with, मतलब according to the something, किसी के साथ समझौता करना, in compliance with, in comparison to, instead of, in the event of, by means of, in consequence of, on account of, by reason of, in course of, owing to. ये सारे क्या है, सारे क्या है, prepositions. In consequence of, on account of, by reason of, in course of, owing to, by virtue of, in favor of, with a view to, by way of, in front of, with an eye to, by way of मतलब इस तरीके से, in front of मतलब के सामने. अब ज्यादातर कैसे बोलते हैं, in front of your stature I have no capabilities, with an eye to, कि उस कोई कोई कार्य करने के या कोई एम बनाने, with an eye to succeed I tried hard in the examination. कि मुझे सक्सेसफुल होना था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से तैयारी की. सो विथ एन आई टू, कंफॉर्मेबली टू, कि उसके अकॉर्डिंग, कंफॉर्मेबली टू, कि उसके अकॉर्डिंग, सर, कि उसके सहमत होना, उसके अकॉर्डिंग, कंफॉर्मेबली टू. इन लिeu ऑफ, विथ रेफरेंस टू, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, विथ रिगार्ड टू, कि उसके रिगार्ड में, विथ रिगार्ड, कि उसके रिगार्ड में. फॉर द सेक ऑफ, इन लियो का मतलब होता है, इन लियो ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, के बदले में, कि इन लिeu ऑफ such and such amount I will give you 30 rupees. In lieu of my car I will give you 3 lakh rupees. मतलब के बदले. Conformably to मतलब in according to, मतलब conformable to that thing. With reference to, देखो in reference to भी आया था और with reference to भी, दोनों ही preposition सही है. For the sake of is a fixed preposition. Sake word पहले लेता है, मतलब किसी को बचाने के लिए. For the sake of my country I will give my life. Suppose this kind of the sentence is there, for the sake of, it would be used in such and such kind of sentence. In order to, इस order के अंदर, ठीक है.
विथ रिगार्ड टू, है ना। तो इन रिगार्ड टू पढ़ा था शुरू में, अब ये विथ रिगार्ड टू गया है। तो these are the 36 fixed prepositions. They are generally randomly asked in the examination, either in the prelims or the mains. Whenever there would be a different word to what have been used in this chart, then you place a fixed preposition instead of that. Okay. So in accordance with, in place of, according to, agreeably to, in addition to, in reference to, along with, in behalf of, in regard to, away from, in case of, in spite of, because of, in comparison to, instead of, by dint of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, conformably to, for the sake of, in comparison to, instead of, in compliance with, in the event of, in consequence of, on account of, in course of, owing to, in favor of, with a view to, in front of, with an eye to, in lieu of, with reference to, for the sake of, in order to, with regard to. These would be the things which would be used. Okay. अब देखो उसी पे सेंटेंस है, सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस। इस परसिवरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस परसिवरेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क। ठीक है, क्या होता है? हार्ड वर्क। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। बाय ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। परसिवरेंस, शेयर मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, परसिवरेंस मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, जो बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा किसी काम को करे, दैट इज नॉलेज। बाय डिंट ऑफ मतलब उस तरीके से, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ। इन केस ऑफ नीड फोन टू नंबर 32,567। सपोज दिस इज द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ सम फॉरेन कंट्री। सो इन केस ऑफ मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो इन पे फोन करे, इस पे फोन करे। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी, जो मेरे अंदर पावर है, आई हियर बाय ऑर्डर एसेट्रा। तो वेस्टेड बाय वर्च्यू ऑफ इज ए प्रीपोजिशन, वेस्टेड इन इज ए प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे बन सकती है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस, कि जो पावर मुझ में दी गई है उसके तहत मैं ऑर्डर करता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस, जो उसको इलनेस है, ही कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम, वो समय पे काम नहीं कर सकता। जो जिससे उसको इलनेस हुई है तो वो समय पे काम नहीं कर सकता। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम, वो टाइम पे वो काम नहीं कर सकता। और इज इल हेल्थ, कि उसकी इल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उसकी इल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस से क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। तो ओविन ने प्रीपोजिशन क्या ली? टू। ओविन टू इज इल हेल्थ रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। विथ reference to your letter of date, we regret we cannot allow any further rebate। with reference to आया इस बात preposition, in reference to नहीं, with reference to your letter of date, we regret we cannot allow any further rebate। मतलब आप और ज्यादा छूट नहीं दे सकते। with reference to your letter of date, we don't allow any further rebate, we regret we cannot allow any further rebate in order to avoid the litigation। जो ऑर्डर है जो अवॉइड कर रहा है लिटिगेशन, ही एक्सेप्टेड ₹300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹350। कि जो ऑर्डर है जो अवॉइड करना है लिटिगेशन, ही एक्सेप्टेड ₹300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹450। इन कोर्स ऑफ टाइम ही सो हिज मिस्टेक, अपने टाइम कोर्स ऑफ टाइम में उसने अपनी मिस्टेक पहचान। ही डाइड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, उसके कंट्री के बिहाफ पे वो काम करते हुए मर गया। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ ही रेड द एड्रेस, तो he persevered in spite of difficulty। persevered मतलब दृढ़ निश्चय से काम करता रहा in spite of difficulties। तो ऐसा है हमें करना। in the event of dying without an issue his, अगर
विदाउट इश्यू वो खत्म हो जाता है। इश्यू का मतलब होता है कि अगर विदाउट विल, अगर वो खत्म हो जाता है, देन हिज नेफ्यू वुड इनहेरिट द होल प्रॉपर्टी, तो फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? उसके नेफ्यू की हो जाएगी सर। किसकी हो जाएगी? उसके नेफ्यू की हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग, बात करने के बजाय, बात करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग प्रूव योर वर्थ, तुम्हारी वर्थ प्रूव करनी चाहिए तुम्हें बाय डूइंग समथिंग, किससे? कुछ करके, कुछ करके तुम्हारी वर्थ प्रूव करनी चाहिए। बाय रीजन ऑफ हिज परवर्स एटीट्यूड ही स्ट्रेंड हिज बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हें तुम्हारे तुम हिसाब से कर रहे हो, बाय रीजन ऑफ हिज परवर्स एटीट्यूड या स्टैंड हिज बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, कि जो परवर्स एटीट्यूड है उससे एक्सचेंज कर सकते हो तुम अपने बेस्ट। परवर्स मतलब जो एटीट्यूड, उल्टा बिहेवियर है, उससे उसने अपने क्या किया? बेस्ट फ्रेंड्स को एक्सचेंज कर लिया, दूर कर लिया सारों को। तो बाय रीजन ऑफ, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे कौन है? बाय रीजन ऑफ प्रीपोजिशन। ये एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, उसने कैसे एक्ट किया? अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। व्हाई डोंट यू गो अलोंग विथ योर ब्रदर, यहाँ प्रीपोजिशन along with, in accordance with your instruction you have remitted the amount of your bank, तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसने क्या किया? रेमिट कर दिया अमाउंट बैंकर को। देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, एक बड़ा पेड़ है किसके फ्रंट में? उसके हाउस के फ्रंट में। ओके, तो ये ध्यान रखना। एग्रीबली टू द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, ये जो एग्रीबली क्या किया? टर्म्स ऑफ सेटलमेंट उससे एग्री होके, वी हेयर विथ क्लोज ओवर चेक ऑफ ₹1000 की एग्रीबली टू द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, की टर्म्स ऑफ सेटलमेंट उनके मानते हुए हमने क्या किया कि चेक दे दिया 1000 का। तो एग्रीबली किससे होता है? टर्म्स से, किसी कंडीशन से हम एग्री होते हैं। ओके, तो हमें ध्यान, बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिपोर्ट, कि पहले उसने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे है। नेक्स्ट, बाय मीन्स ऑफ रोप लेडर्स दे स्केल्ड द वॉल, क्या क्या अपनाया? बाय मीन्स ऑफ रोप लेडर्स, तो रोप लेडर्स अपनाए और उससे वो ऊपर चढ़ गए। ओके, सो दिस वुड बी द रियल आंसर, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फॉर द सेक ऑफ देयर बिलीफ द पुरिटन्स इमिग्रेटेड टू अमेरिका, कि उन्होंने अपने बिलीफ्स को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अमेरिका को बच को इन फॉर द सेक ऑफ देयर बिलीफ्स द पुरिटन्स इमिग्रेटेड टू अमेरिका, कि उन्होंने वहां पे बचाने के लिए अमेरिका में चले गए। ओके, देन इट वुड बी like that, no problem. For the sake of their beliefs the Puritans immigrated to America. In course of his researches he met with many difficulties, तो उसकी रिसर्चेज की जो चीज हुई उसके क्या हुआ कि कई डिफिकल्टीज से वो मिला, कई डिफिकल्टीज उसके सामने आए। सो दिस वुड बी द
इन कोर्स ऑफ हिज रिसर्चेज, कि जब वो इस कोर्स के दौरान फॉर द सेक ऑफ देयर बिलीव्स, अपने बिलीव्स को बचाने के लिए, पुरिटन्स एमिग्रेटेड बाय मींस ऑफ, दिस इज बाय मींस ऑफ, सो ये हुई फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूरी, कि ऐसे आ सकता है। he addicted the he he addicted abdicated the throne in favor of his eldest son। तो यहाँ क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे इन फेवर ऑफ प्रीपोजिशन है। इन फेवर ऑफ क्या है, इन द इवेंट ऑफ डाइंग विदाउट इट। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन he abdicated the throne in favor of his eldest son। अपने एल्डेस्ट सन के फेवर के अंदर उसने क्या किया, एब्डिक्ट कर दिया थ्रोन। मतलब एब्डिक्ट का मतलब होता है त्यागना, एब्डिक्टेड। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन क्या है, इन फेवर ऑफ, कि उसके फेवर में। एब्डिक्टेड का मतलब क्या होता है, एब्डिकेटेड मतलब, एब्डिकेट मतलब त्यागना, टू गिव अप, टू गिव अप। he could not attend school because of his father's serial illness। क्यों नहीं अटेंड कर सका, बिकॉज ऑफ हिज फादर। तो बिकॉज ऑफ वुड बी द प्रीपोजिशन है। he accepted the car, उसने कार एक्सेप्ट की, इन लियो ऑफ, किसके, लियो ऑफ में, मतलब कोई बचा नहीं था, इन लियो ऑफ हिज क्लेम फॉर ₹1,25,000। तो इन लियो ऑफ वुड बी द प्रीपोजिशन है, इन लियो ऑफ वुड बी द प्रीपोजिशन है। विद ए व्यू टू एन एमिकेबल सेटलमेंट वी ऑफर यू विदाउट प्रिजुडिस ₹750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ योर ऑल क्लेम्स अप टू डेट। अब देखो यहाँ पे लियो ऑफ आया, तो लियो ऑफ का मतलब कैसे से है यहाँ पे, विथ व्यू टू एन एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, जो आपको अच्छा लगे। वी ऑफर यू विदाउट प्रेजुडिस ₹700 फुल सेटलमेंट ऑफ योर विथ ए व्यू टू। तो ये क्या है, विथ इस मद्देनजर रखते हुए इसको, फुल सेटलमेंट ऑफ योर क्लेम्स अप टू डेट ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हेवी लॉस। मतलब उसके कारण, तो ऑन अकाउंट ऑफ वॉट एवर ही डज विथ एन आई टू द मेन चांस। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आई है विथ एन आई टू, और कौन सी है ये, फ्रेजल प्रीपोजिशन। देखो कुछ वर्ड है दोस्तों, जैसे बेरिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रेस्पेक्टिंग, टचिंग, और फ्यू सिमिलर वर्ड। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब्स का, वो एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन के साथ अटैच होती है टू देम। तो कुछ वर्ब जो नाउन की तरह यूज होती है, जबकि जब उनमें आईएनजी लगाया जाता है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, उनके साथ कोई भी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए दे हैव बिकम प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन बन चुकी है। एंड आर समटाइम्स डिस्टिंग्विश्ड एज ए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। कई बार उनको बोला जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस भी बोला जाता है। ओके, बेरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग। तो ये प्रीपोजिशन कैसी प्रीपोजिशन है, जिनके साथ में आईएनजी लगा हुआ हो। पेंडिंग, रिगार्डिंग, रेस्पेक्टिंग, touching, and a few similar words which are present participle of the verbs are used absolutely without any noun or pronoun being attached to them. For all practical purpose, they are now become the preposition and are sometimes distinguished as a participle preposition। इनको कई बार पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी बोला गया है। तुम्हें ये बताया गया कि पार्टिसिपल क्या होता है,
आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे यहाँ पे है बेरिंग। बेरिंग accepting apart from accident the mail will arrive tomorrow। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब यहाँ पे देखो बेरिंग फ्रॉम एक्सीडेंट नहीं आया, सिंपली बेरिंग कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मेल कल पहुंच जाएगी। मतलब क्या है, ट्रेन, द मेल मतलब ट्रेन कल आ जाएगी अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ। कंसर्निंग यस्टरडेज फायर, अगर मैं कल की फायर की बात करूं, देर आर मेनी रूमर्स इन मार्केट, तो बाजार में कई रूमर्स है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह कौन एक्ट कर रहा है, बेरिंग। कौन यूज कर रहा है, बेरिंग। या कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब कंसर्निंग अबाउट यस्टरडेज फायर। कंसर्न क्या है, वर्ब, कंसर्न वर्ब है, तो यहाँ पे कंसर्निंग। कंसीडरिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई, अगर मैं क्वालिटी देखूं तो प्राइस इतनी हाई नहीं है, प्राइस इतनी हाई नहीं, प्राइस इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। यूलाइसेस इज सेड टू हैव इन्वेंटेड द गेम ऑफ चेस ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। यूलाइसेस ने गेम ऑफ चेस ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय, उसने खोजा था। हैव टू हैव इन्वेंटेड द गेम। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन siege of Troy. Notwithstanding the resistance offered by him, he was arrested by the police। मतलब in spite of the resistance। तो अब notwithstanding यहाँ पे काम कर रही है प्रीपोजिशन का, लेकिन आई है एज ए सब्जेक्ट। द रेजिस्टेंस मतलब कोई, यही है सब्जेक्ट, यही है वर्ब, यही है प्रीपोजिशन। अगर वर्ब के आगे नॉट विथस्टैंडिंग, विथस्टैंड के आगे आईएनजी लगा दिया गया, देन इट्स बिकम ए सिंपली ए वर्ब। ओके, सो बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पेंडिंग फर्दर ऑर्डर। तो पेंड प्लस आईएनजी, पेंड प्लस आईएनजी, पेंडिंग फर्दर ऑर्डर्स। मिस्टर देसाई विल एक्ट एज हेडमास्टर। रिगार्डिंग योर इंक्वायरी, regret to say that at present we are not interested in imitation silk। किसमें, imitation, imitation silk। बस ये ध्यान रखना। रिगार्डिंग योर इंक्वायरी, रिगार्ड प्लस आईएन, रिगार्ड प्लस आईएन। रिगार्डिंग योर inquiries, regret to say that at present we are not interested in imitation silk। imitation silk में हम interested नहीं। respecting the plan you mention I shall write to your hereafter। अगर तुम्हारे प्लान की रेस्पेक्ट करूं तो मैं लिखूंगा। मैं टचिंग विथ रिगार्ड टू दिस मैटर आई हैव नॉट एज येट मेड अप एनी माइंड। अभी तक कोई माइंड नहीं बनाया। ओके,
टचिंग दिस मैटर, अगर इस मैटर को टच करूं, आई हैव नॉट येट मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना माइंड नहीं बनाया। ओके। कि कुछ कई वर्ड्स है जो कई बार एडवर्ब की तरह काम में लेते हैं, समटाइम्स एज ए प्रीपोजिशन। तो कई बार प्रीपोजिशन के तब आते हैं जब वो गवर्न करते हैं नाउन या प्रोनाउन, और अगर वो एडवर्ब रहेंगे, अगर वो नाउन या प्रोनाउन की तरह नहीं आएंगे। गो एंड रन अबाउट, अब रन क्या है सर? वर्ब है। अगर अबाउट यहाँ पे क्या आया है? व्हाट आर यू लुकिंग एट, अब ये लुकिंग क्या है? वर्ब। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन आया है। यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन है क्या? नहीं। सिंपली यहाँ पे क्या है? गो एंड रन दोनों वर्ब है। अगर वर्ब को ही क्वालिफाई करे या फिर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करे जब वो वर्ड, तो वो प्रीपोजिशन नहीं होके क्या है सर? वो एडवर्ब है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अबाउट इस वर्ब को कर रहा, आई कुड नॉट कम बिफोर, मैं इससे पहले नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या है? वर्ब। हेज ही कम इन, यहाँ पे क्या है? वर्ब, एडवर्ब। ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? हेज ही कम इन। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है, तो प्रोनाउन नहीं है या नाउन नहीं है, उसको क्वालिफाई नहीं करवाना, देन इट्स नॉट ए प्रीपोजिशन। द व्हील केम ऑफ, व्हील क्या हो गया? बाहर निकल आया सर। वे, ये क्या है? वर्ब। वर्ब के आगे जो आए वो एडवर्ब। लेटस मूव ऑन, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए आया है? ये वर्ब के लिए। और वर्ब के लिए आए तो वो क्या है? हिज फादर अराइव्ड सून, उसके फादर आए बहुत जल्दी आए। अराइव्ड सून, उसके फादर बहुत जल्दी पहुंच गए। टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, तो उसके उस पार्सल को कहाँ ले जाओ? अवर टू द पोस्ट ऑफिस। अवर क्या है सर? वर्ब। वर्ब से उसको अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो वो एडवर्ब है यहाँ पे। यहाँ पे टू क्या है? एडवर्ब। जबकि लग रहा क्या है कि ये प्रीपोजिशन है, बट प्रीपोजिशन कब होता है? जब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तो यहाँ पे सिंस क्या है? यहाँ प्रोनाउन को क्लियर कर रहा है। तो यहाँ प्रीपोजिशन, सेम वर्ड प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज हो सकते हैं सर? ये भी देखते हैं हम कि सेम वर्ड प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज होते हैं। देखो पहला वर्ड, डोंट लोइटर अबाउट द स्ट्रीट। अब लोइटर क्या है? वर्ब है। अबाउट द स्ट्रीट क्या है? ये अब वर्ब के बाद में आई प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन फॉलो कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई फॉलो हो, देन दिस